எம்பிக்களினுடைய குரல் அங்கே அங்கீகரிக்கப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும். ஏன்னா இன்னைக்கு ஆட்சியில இருக்கிறவர்கள் மக்களுக்கானவர்கள் அல்ல, மண்ணை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. என்ன நடக்குது இங்க பேசும்போது ஒரு எம்பி கூட குறிப்பிட்டார் பங்களாதேஷ் கதையை. பங்களாதேஷ்ல என்ன நடக்குதுன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நாளைக்கு அதுல இந்தியாவுக்கு வெகு தூரத்திலே இல்லை என்பதுதான் நிலைமை. நம்ம மாதிரி இருக்கிற அமைதியாக இருக்கிற கடந்த காலத்திலே 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக உழைத்தவர்கள் நியாயத்தை கேட்கிற போதே காது கொடுத்து கேட்காத இந்த இந்திய அரசாங்கத்தை 54% இன்றைய மக்கள் தொகையிலே இருக்கிற இளைஞர்கள் தான் கேள்வி கேட்க வேண்டும். नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है EPS 95 कर्मचारी रिटायर्ड जो है सभी मिलकर के जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार इन लोगों का धरना प्रदर्शन चलता रहता है और सरकार के समक्ष ये कई बार जो है मेमोरेंडम भी सौंप चुके हैं, लेकिन सरकार इनकी डिमांड्स पूरी क्यों नहीं कर रही है। लगातार ये लोग चुनाव भी होते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं इनकी भागीदारी रहती है कि सरकार को जितवाने में, लेकिन इनके वोट तो ले लिए जाते हैं, लेकिन इनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं की जाती है। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं जो कि धरने में आए हैं। इनका हम पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। सर, आपका इंट्रोडक्शन। Actually, this scheme EPS 95. आपका नाम सर? Mohanan, D. Mohanan, actually working president of the All India Coordination Committee of this EPF Pensioners Forum. सर, आपकी डिमांड क्या है? आप लगातार Actually, our demand is first demand enhance minimum pension per month to 9,000. 9,000. Second, introduce dearness allowance in this scheme. Third, we already lost 24 years for calculating this pension, our service. So, include full service for calculation of pension. Another one is medical facility. Medical facility. We want medical facility. So, government should form a separate medical scheme for EPF pensioners. Next, reinstate the railway concession, which was already stopped in जो है वो senior citizen. Yes, that is stopped by Corona period. Okay. So that should be reinstated. Then another one is November 4th on 2022nd Supreme Court verdict for higher pension. In this scheme, there is a provision for higher pension on actual wages pension. We want speed up the distribution of that pension. EPFO is lagging with that verdict. These are the main demands now. So we came another time to Delhi for agitating that for that demands. This is the 14th time we agitating from the beginning. This is the 14th time in front of Parliament we are coming. So many MPs are supporting us, but nothing doing with this government or this government. So we are arranging this type of dharna, not only here, another statewide. So many states, they are doing district-wise agitations. ओके सर। Then, अगर आपकी डिमांड्स अभी भी पूरी नहीं होती है तो आप आगे क्या करोगे सर? ऐसा है कि पहली बात तो हमारे साथी ने कहा है कि डिमांड, आप भी डिमांड बोल रही हैं। ये डिमांड नहीं है हमारी, ये हमारा हक है, जो संवैधानिक हक है। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, ये पैसे हमारे ही हैं जो EPFO में जमा है, और ये 2 रुपए नहीं है, ये करोड़ों रुपए में है, जिसको हमारी सरकार ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दिया हुआ है ये पैसा उधार, और उस उधार के बदले इनको जो इंटरेस्ट मिलता है वो इतना इंटरेस्ट मिलता है कि अगर 100 रुपए इंटरेस्ट मिलता है तो उसमें से 40 रुपए ही हम पेंशनर्स को देते हैं। ये ब्याज में से 40 रुपए ओनली, बाकी जो हमारा मूल है वो इन्हीं के पास है, अभी जमा है, वो भी करोड़ों में है। 150,000 करोड़ है जो सरप्लस अमाउंट इनके पास पड़ा हुआ है, अनटच्ड, जो अनक्लेम्ड जिसे कह सकते हैं आप, उस अमाउंट को ऊपर भी ये अपना
फन मार के बैठा हुआ है मोदी सरकार। मोदी हमारा, मोदी सरकार क्या, मोदी ही बैठा हुआ है। और वो जो 40 पैसे हमें 100 रुपए में से दे रहा है, जो वो ब्याज के हैं, वो उस ब्याज को भी वो कह रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है। जो ब्याज आ रहा है हमारे पास उस पैसे का, उस ब्याज के 40 पैसे हमें दे के हमें ये बोल रहा है कि ये पैसा नहीं है हमारे पास आपका पेंशन बढ़ाने के लिए। जबकि ईपीएस जो भी हमारे इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्री का ही सारा पैसा पूरे देश में लगा हुआ है। इंडस्ट्री के ही पैसे से ये गवर्नमेंट मजा कर रही है। इंडस्ट्री का ही पैसा है जो ईपीएफओ खा रहा है। ईपीएफओ में जो भी पैसा इकट्ठा होता है, आप ईपीएफओ को मानिए एक ट्रस्ट है। ईपीएफओ एक ट्रस्ट है और ट्रस्ट के पास आप जानते हैं कि अपना पैसा नहीं होता। ट्रस्ट जो है वो इधर उधर से पैसा इकट्ठा करती है। जो बनाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो ऐसी ट्रस्ट है कि वो दादागिरी से जो इंडस्ट्रियल वर्कर है उनसे पैसा बटोर रही है। सबको मेंबर बनना जरूरी है। जो भी एमएनसी है उसका जो भी एम्प्लॉय होगा उसको वहाँ धक्के से इसका मेंबर बनाना है ईपीएफओ का। उसका जितना भी पैसा कंट्रीब्यूशन आता है वो ईपीएफओ में चला जाता है और वो ईपीएफओ में महीने का करोड़ों रुपए इकट्ठा होता है, जो आपका ईपीएफ के नाम से है, आपका ईपीएस के नाम से है, पेंशन फंड में जाता है और आपका जो है दूसरा आपका जो है प्रोविडेंट फंड के रूप में जाता है। प्रोविडेंट फंड आपको जो है आपकी रिटायरमेंट के बाद मिल जाता है। उस पैसे को भी ये लटका के देते हैं। उसके ऊपर भी 100 तरह के ये रास्ते बनाते हैं रिटायर लोगों के लिए। तो आप इससे अंदाजा ये लगाइए कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर, बैकबोन ऑफ द नेशन, इंडस्ट्री से ही ये नेशन बनता है। जो मोदी, अभी मैं दूसरी भाषा बोलने लगा हूँ जो ठीक नहीं है, अनपार्लियामेंट्री है। आप कच्चा बनियान जो है वो भी इंडस्ट्री वाले बना के देते हैं, जो मोदी पहन के घूम रहा है और दादागिरी से चल रहा है। आप ये देखिए कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर अगर ये काम नहीं करेंगे, इंडस्ट्रियल वर्कर काम करते हैं, उसका पैसा ही देश को चलाने में काम आ रहा है। आपके समक्ष तमाम एमपीज आते हैं, वो कहते हैं हम आपकी आवाज जो है पार्लियामेंट में उठाएंगे, लेकिन वोटों के टाइम जब चुनाव होते हैं तो वोटों के टाइम पे तो वो लोग बड़े वादे करके चले जाते हैं। है कि एमपी लोग भी जो हैं, एमपी लोग भी एक वोट बैंक इकट्ठा करते हैं। उनको भी ये राजनीति जो है एक झूठ की राजनीति है। जो अच्छा से झूठ बोल सकता है, मक्कारी कर सकता है, छल कपट कर सकता है, वही नेता बन सकता है। सीधा आदमी, सच्चा आदमी नेता नहीं बन सकता। उसको वैसे ही गोली मार के मार देंगे। तो फिर अब ईपीएस 95 कर्मचारी जो है रिटायर्ड, वो अपनी जो आप कह रहे हैं हक, डिमांड नहीं हक, वो कैसे लेंगे फिर? अब देखो, हमारे देश में क्रांतिकारी भी बहुत हुए हैं। हमारा क्रांतिकारी जो भगत सिंह था, भगत सिंह मरने से पहले उसने ये बोला था कि हमें आवाज उठानी है। अगर हम ये सोचें कि ये इंग्लिश गवर्नमेंट है हमें आज़ादी नहीं देगी, जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, ये हमारी आवाज बुलंद नहीं होगी, तब तक इनके काम नहीं फटेंगे, हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। तो इसी तरीके से हम आवाज उठाते रहेंगे। कोई तो खानदानी शासक आएगा। बजट पास हुआ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, कोई तो खानदानी शासक आएगा। ये खानदानी शासक नहीं है। ये खुद ही कहता है कि कभी कहता है मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, कभी कहता है मैं भगवान का अवतार बन के आया हूँ। अच्छा ये बताइए, आप उनसे अपनी जो आपका हक है वो लेने आए हैं या फिर उनकी मतलब उनके बारे में जो भी है आप इस तरीके से बोल रहे हैं कि उनकी जो कमियां हैं वो बताने आए हैं? नहीं, हमें कमियां हैं, तभी तो हमें हक नहीं मिल रहा हमारा। जिस आदमी में कमी होती है वही हक नहीं देता ना। जो आदमी में कमी नहीं है वो हक देगा। उसे पता है कि मुझे भूख लग रही है, दूसरे को भी लग रही है। मुझे कपड़ा पहनना है तो दूसरे को भी बढ़िया कपड़ा नहीं पहनना, लेकिन तन ढकने के लिए उसको कपड़ा चाहिए। वो अच्छे से अच्छा खाना खाए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जिसने दर्द सहा है वही दर्द जान सकता, वही जानता है। जिसको भूख लगी है उसी को पता है भूख क्या होती है। ठीक है, अब उसे पता है कि सारी जिंदगी उसने हेरा फेरी करके ये चीजों को इकट्ठा किया है। और अब आप ये देखिए कि एक भिखारी, आप देखे हैं ना, सड़क के किनारे भिखारी बैठा होता है और उस भिखारी भीख मांगने के बाद अगर आप उससे ये कहती हैं कि भैया इसमें से मुझे 2 पैसे दे दे, तो क्या भिखारी आपको 2 पैसे उसमें से दे देगा? सेम पोजीशन हमारे मोदी बाबा की है। मोदी बाबा ने जो भी उल्लू बना के पब्लिक को छल कपट करके, वो जानता है कि इस देश की जनता कैसी है। उसको पता है कि छोटे से लालच में आ जाएंगे, जल्दी से बहकाए में आ जाएंगे। कहना चाहेंगे सर? मैं तो यही कहना चाहेंगा कि अगर मेरा नाम है वाई आर सूरी। अगर मोदी सरकार अभी भी अगर हमारा नहीं सुनती है तो हम तो ये चाहते हैं कि अभी जो नया एमपीज बहुत सारे आए हैं वो सब अपोजिट वाले हैं और वो लोकसभा में हंगामा करेंगे। ये भी हंगामा होने के बाद
अगर नेक्स्ट सेशन जब आएगा तो हो सकता है कि लोकसभा बंद हो जाएगी। सर आप सब- कहीं ना कहीं आप लोग की जो हक है, जो आप लोग कह रहे हैं नहीं दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो चुनावों में सीटें कम हुई है, इसी का परिणाम इसी का है। परिणाम है। हम लोग ने पहले ही अनाउंस किया था, मोदी सरकार को पहले ही लेटर दिया था कि भाई ये देखो, अगर आप हमारा पेंशन बढ़ाएंगे नहीं तो आपको वोट हम लोग देंगे नहीं। और इसका परिणाम पूरा भारत में दिखा है और इसीलिए ही हर एक स्टेट में मोदी का सीट बहुत सारा कम हो गया। ज़्यादा से महाराष्ट्र स्टेट में जो मोदी का वोट पूरा गया और मोदी का पूरा सीट चला गया, मिनिमम 75 to 80-90% वोट जो है सीट जो है मोदी को मिला नहीं। अभी महाराष्ट्र का राज्यसभा का भी इलेक्शन है, महाराष्ट्र राज्य में इलेक्शन हो रहा है। अगर विधानसभा का इलेक्शन तक अगर मोदी ये हमारा काम नहीं करता है, उनको वैसे बताया भी है हमारे एमपी के माध्यम से, अगर वो काम उन्होंने नहीं किया तो विधानसभा में भी मोदी का सीट पूरा खाली हो जाएगा और मोदी को वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। मोदी क्या फडणवीस को भी जितने हाँ, भी देंगे। वही तो ना। उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी क्या फडणवीस को भी महाराष्ट्र में जितने नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं। 8 लाख कोटी हमारा प्रोविडेंट फंड का जमा है, उसका ब्याज आता है, वो भी हमको 20-25% ही दिया जाता है। अगर वो 100% हमें ब्याज दिया जाए तो 9,000 रुपए हर महीना आराम से मिलेंगे। गवर्नमेंट महाराष्ट्र सर से सर चली सर जाएगी। सर सुनिए, सरकार लगातार बुजुर्गों की बात करती है, सीनियर सिटीजन्स की बात करती है, उनके लिए आयुष्मान योजनाएं ले लेकर के आती है। ये सरकार सब झूठे वादे हैं। आयुष्मान सरकार का जितना लोगों को फायदा नहीं होता, उनका डॉक्टरों को फायदा होता है। मजदूरों को कुछ लोगों को डॉक्टर भी बोलते हैं हम कुछ पैसे जुमला दिया जा रहा है। जुमला दिया जा रहा है। ये सरकार ने हमको 2014 के पहले वादा किया था, हम आपको 3,500 और महंगाई भत्ता देंगे, पर 10 साल में एक वादा भी उन्होंने पूरा किया नहीं। महाराष्ट्र में ना किसानों का भला किया है, ना कामगारों का भला किया है। सबसे आज तक के जितने साल में सबसे बड़ा जुमलेबाज सरकार ये रही है।